नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। सॉरी। सो प्रदीप जी, मोदी जी का भाषण उड़ीसा में। यस यस। एंड लुक व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा कि साहब मैं G7 के लिए कनाडा में गया था तो ट्रम्प साहब का फोन आ गया कि भाई आ जाओ जरा वाशिंगटन में, खाना वाना खाएंगे। तो मैंने कहा साहब मुझे तो जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आदर से मैंने उनको यह बता दिया कि मुझे क्योंकि महाप्रभु की भूमि पे आना है, महाप्रभु यानी महाप्रभु जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथपुरी में आना है, यानी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी की जो भूमि है उड़ीसा, वहां पर आना है। प्रदीप जी आपको याद होगा, आई थिंक 4 or 5 years ago मैं और आप, बिल्कुल, हम लोग यहीं जो मुंबई की जो जगन्नाथ यात्रा होती है, यस हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ जगन्नाथ जी के रथ को yes खींचने का। तो really and truly a wonderful experience for all of us. So in effect, Mr. Modi was poking fun at Trump, wasn't he? A very diplomatic manner, a very nice manner, and he told what he had to tell. And it was a lesson to all the opposition out here also, including the Congress, that look, I refused or I refute what you all saying. We have not gone in spite of the mightiest man of the world calling me for a visit to White House, and I refused it. Gee. Now that's a great, it's something that the whole world should be talking about. In fact, that is the story that Prime Minister Modi ne refused Trump ke invitation. Now that's a story. Now nobody wants to talk about it. The opposition. No prime minister. Yes. No head of state ever has ever refused an invitation, personal invitation, Bilkul. from the President of the United States, especially when he was right next door. Exactly. And Prime Minister Modi yesterday said the telephone call was initiated by Trump. Trump साहब का फोन आया. Yes, it is initiated by Trump, and he gave the briefing about how things are. G7, terrorism, all world coming towards against terrorism. इसी बात पर बात हुआ, and Trump invited him. 35-minute call, 35-minute telephone call. At the end, Prime Minister Modi refused to go to White House. He said he's got things lined up. I mean, that's a fantastic. I mean, that's of course he had to go to Croatia. He had to go to Croatia, but the mightiest man in the world calling, and anybody would have been. अरे साहब, जो मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, मतलब परसों से बोल रहा हूँ, जब से खबर आई है कि ये मोदी है, अरे गुजराती भाई है भाई, इतना जल्दी इसको बेवकूफ बनाना किसी के बस की बात नहीं है। 100 ट्रम्पों को ये बेवकूफ बना देगा, सीधी बात है। मिस्टर मोदी चेकमेटेड ट्रम्प, लेट्स बी वेरी क्लियर। ट्रम्प साहब चाहते थे कि मोदी जी वहां पर आए और मुनीर साहब जो उनके क्या है, वो फील्ड मार्शल हैं जो भी हैं, उनके और उनके साथ उनकी तस्वीर हो जाए। मतलब who do you think this is? I mean, come on, this is absolutely crazy. In any event, I think that was a very childish thing to do on the part of Mr. Trump. I think that was very stupid, very frankly speaking. And again for Mr. Trump to keep repeating, I prevented the war, I was responsible for the ceasefire, I prevented the war between India and Pakistan. Well, God bless you. It was very sort of just Prakash, the US spokesperson, was replying to the questions that Prime Minister, she said, President Trump has offered his help, and if any country refuses it, what can we do? So they acknowledge the very fact that India has refused any mediation from US. Right, I think we've got a wonderful panel of guests. Let's go straight across to them. I think we have Mr. Vinay Kambekar of the BJP with us from Pune, and we've got our dear old friend Yogesh Chele साहब, looking very dapper and nice. बहुत अच्छे लग रहे हैं योगेश चले साहब। और अंबेकर साहब, I'm not sure. Let's see how it goes. क्योंकि अंबेकर साहब is usually brighter than what he looks right now. But all the same, what I am about to tell him will bring a smile to his face. योगेश चले साहब, सुनने वाली बात है। अंबेकर साहब, सुनने वाली बात है। जो लोग बोल रहे हैं ना
कि बार बार मोदी जी ने अरे भाई ट्रंप की बात को खंडन क्यों नहीं किया, खंडन क्यों नहीं किया, खंडन क्यों नहीं किया। ऑपोजिशन वाले सब बोल रहे हैं कि आकर के मतलब क्या चाह रहे हो कि यार मतलब मोदी जी ट्रंप को गाली दें क्या, मतलब व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट हियर इज समथिंग which shows why India is showing so much of restraint. In spite of the fact that what Mr. Modi has said today, I think should shut everybody up. जो आज मोदी जी ने ओडिशा में बोला है ना कि ट्रंप का फोन आया, 30-35 मिनट बात हुई और उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया कि भाई आ जाओ, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे महाप्रभु की धरती पे आना है। महाप्रभु मतलब जगन्नाथ महाप्रभु, उनकी धरती पे आना है। Of course, he had to go to Croatia first and then come here. And obviously हमारी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बता दिया होगा कि वहां पे वो जो क्या है, वो मुनीर साहब जो हैं वो बैठे हुए, न्यूली प्रमोटेड फील्ड मार्शल बैठे हुए हैं, तो लोग चाहते होंगे कि तस्वीर आ जाए। बट हियर सर, India has a $131.84 billion trade with the US. अंबेडकर साहब, $131.84 billion ट्रेड, और उसमें यूल बी ग्लैड टू नो, योगेश चिले साहब, सुनने वाली बात है, अंबेडकर साहब, ऑफ कोर्स वी वेलकम राकेश प्रजापति साहब ऑल्सो फ्रॉम बदायूं। राकेश प्रजापति साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। नमस्कार। नमस्कार सर, India has a trade surplus with the United States. I don't know whether you are aware. We have a trade surplus of $41.18 billion with the United States of America. Now, naturally, apart from the fact, I'm really sorry, I've got a bad throat. Apart from the fact that the US is the most powerful country in the world and so on and so forth, I don't think we want to rock the boat over there, do we? I mean, without kowtowing to the United States, Mr. Modi has placed India's position very firmly, very politely. क्या कहेंगे अंबेडकर साहब इसको लेकर के, बताइए। डेफिनेटली ये जो जियोपॉलिटिकल गेम्स है इसमें मोदी जी बहुत माहिर है, और ऐसे कोई ट्रैप जियोपॉलिटिक्स में डाले जाते हैं जैसा हमने कई बार होते हुए देखा है कि यूएस स्थित जो डीप स्टेट है वो हर कंट्री को, जो दुनिया में कोई भी कंट्री अच्छी तरक्की करता है उस कंट्री को कैसा निरस्त करते हैं, कैसा उनको डिफीट करते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल लेना है तो आप बांग्लादेश का ले सकते हैं कि बांग्लादेश की जो पहली प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से विकसित किया था और बांग्लादेश एक कॉम्पिटिटिव बनाया था बांग्लादेश को एपरल्स में या अनेक चीज़ों में उन्होंने। तो ऐसे जो मगर उन्होंने एक ही किया कि अमेरिका का सुप्रीमेसी मानने के लिए उन्होंने नकारा। तो वो डीप स्टेट के जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उन्होंने क्या किया कि उनके ही कंट्री के लोगों को पकड़कर उनके विरुद्ध में भड़काया और कैसा उनको पदच्युत किया। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अमेरिका को रशिया का जो डेवलपमेंट था वो नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने यूक्रेन को साथ में लेके और नाटो कंट्रीज को साथ में लेके यूक्रेन को भड़काया और रशिया को उन्होंने तकलीफ देने का काम किया, और फिर रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्री में 2 साल युद्ध शुरू है। वैसा ही हम तीसरा देखेंगे तो इजराइल पे इन्होंने ये जो गाजा पट्टी के जो बंडखोर लोग थे उनके तो अटैक करवाया, कुछ भी नहीं था, कोई रीजन नहीं था, और इसराइल को गए 1 साल से युद्ध में अटका के रखा है। तो जो पाकिस्तान स्थित अतिरेकियों ने पहलगाम में जो हमला किया था ये वही टाइप का एक उनका कट था, जो एक उनका डिजाइन है उस डिजाइन के तहत हुआ था, और उनको ये उनकी चाहत थी कि इंडिया में ऐसा एक बहुमत तैयार हो जाए कि इसका बदला ले लो, जैसा हुआ भी। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग हैं उनको लगता है कि इसने कुछ कारण नहीं रहते हुए हमारे निरपराध लोगों को मारा है, तो इनको अच्छा तरह से जवाब दिया जाए। मगर इसमें एक बात समझने जैसी है, जो विरोधी पार्टीज है या जो कांग्रेस है उनको ये बात समझती नहीं है, या फिर वो जानबूझ के मोदी जी को उकसाने का ट्राई करते हैं। जैसा कोई आदमी उनका बोलता है कि नरेंद्र सरेंडर, ये लैंग्वेज में जाके इतने निचली स्तर पे जाके वो बात क्यों करते हैं
क्योंकि वो मोदी को उकसाना चाहते हैं। मगर मोदी इन सब का जो बाप है, और मोदी जी ने ये समझ में लिया कि ये इंटरनेशनल डिजाइन क्या है, उस डिजाइन में अपने को फंसना नहीं है। इसलिए उन्होंने जो अच्छी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला काम था वो अच्छी तरह से किया। ना तो इंडिया की कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुकी, ना तो इंडिया कोई युद्ध में अपने मर्जी के विरोध में उसमें उतरा। और मोदी जी ने बहुत संयम बरताया, जो संयम आज भी, जो अपने देश में दो लोग हैं, एक जो लोग है कि जिनको कुछ जियोपॉलिटिक्स समझता नहीं, और एक जो लोग है, कोई तरफ के लोग है कि इनको जियोपॉलिटिक्स समझता है मगर वो फॉरेनर्स की भाषा बोलते हैं। Sir, I must give you some breaking news here. I must inform you of something, and this is for everybody. प्रजापति साहब सुनने वाली बात है, चिले साहब सुनने वाली बात है. The Israeli Defense Director General, a gentleman called Amir Baram. Amir Baram was recently in India. He had inspected he had taken a look at our production lines, seen the BrahMos missile being produced, seen some of the Israeli missiles which we are producing over here. सर क्या हुआ है, ये सुनने वाली बात है. दिस इज कम आउट जस्ट नाउ. ईरान ने कोई 300 के करीब मिसाइल दागे थे इजराइल के ऊपर. परसों तक का ये हाल है. 300 उसमें से 40 गॉट थ्रू. 40 मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को खत्म करते हुए, उसको ओवर पार करते हुए, दे गॉट थ्रू एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डैमेज इन इजराइल. मिस्टर बराम हैज एक्चुअली कॉल्ड अप आवर डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह साहब, और उनको ये कहा है कि भाई वी नीड सम टेक्निकल हेल्प विद आवर आयरन डोम. आई थिंक even though I doubt it very much if India will actually provide it, they might, we don't know, but I think that's a great achievement for India. That's huge. Exactly. Israel, instead of calling up the United States of America, is calling up India. I think that's a great achievement for our scientists. What do you think? Ambekar Saab, please. सो यही अचीवमेंट जो है वो अभी जो अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसमें इंडिया की जो सुप्रीमेसी दिखी, वो नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का जो प्रोग्राम है, जिसमें इंडियनाइजेशन है, जिसमें अपने जो डिफेंस फैक्ट्रीज है, डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बल देने का काम है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे ले जाने का काम है. तो ये सब काम जो मोदी जी ने 11 साल किया है उसका ये नतीजा है. और इंडिया की सुप्रीमेसी ओवर वॉरफेयर, ये जो इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट है, इसकी जो क्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई. और इंडिया के इसमें डिफेंस इक्विपमेंट के फील्ड में इंडिया और आगे जाएगा. जो बात अपने सामने आती है फाइनल के बाद आते हैं. अंबेडकर साहब, बट स्टिल द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जयराम रमेश यही जिद कर रहा है कि 35 मिनट जो टेलीकॉल थे मोदी जी और ट्रम्प के, वो उस चीज के बारे में देश को जानना चाहिए कि क्या हुआ. He wants to know. He says, why don't you call an all-party meeting? कांग्रेस कह रहा है, we want an all-party meeting. The Prime Minister should agree to that. कि क्या वार्तालाप हुआ, वो पूरा देश जानना चाहता है. How do you justify this kind of a reasonable, ये क्या reasonable समझते हो आप विनायक अंबेडकर साहब, ऐसे रिक्वेस्ट कि all-party meeting इसमें बुलाना चाहिए 35 मिनट टॉक, टेलीफोन टॉक का. देखिए, जब भी संसद का अधिवेशन होगा, जैसा कि मानसून अधिवेशन अभी ड्यू है, तो उसका डेट भी अनाउंस हो गया है. उस अधिवेशन में संसद को और संसद के थ्रू पूरे देश को जानकारी दी जाती है. ऐसा कोई बोले कि हमको चाहिए, वो कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. जो भी बात इंडिया के नागरिकों को चाहिए थी वो मोदी जी ने बताई है, और मोदी जी ने भी नहीं बताई खुद, पूरे जो अपने डीजीएमओ है, डिफेंस के ऑफिसर्स है, उन्होंने बताई हुई है. तो ऐसा कोई बात छुपी नहीं है. जो सर्वसामान्य इंडियन है, जो नेशनलिस्ट इंडियन है, उसको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ना तो और कोई जानकारी चाहिए. वो बहुत सुखी है, वो आनंदी है. खाली ये जो कांग्रेस जो है, उसको ये एक धक्का लग गया कि उन्होंने 70 साल में जो सुप्रीमेसी डिफेंस इक्विपमेंट में, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में नहीं कर सके, वो मोदी जी ने 11 साल में की है. ये उनको जो एक मन के अंदर उनको जो एक दुख है, वो दुख के लिए वो ऐसा बात को बहका रहे हैं. जी, लेट मी गो अक्रॉस स्ट्रेट अवे. अब क्योंकि बदायूं से इस वक्त सर हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति. राकेश प्रजापति जी, आप बताएं सर,
आज की तारीख में जिस प्रकार भारत ने, मुझे तो ऐसा लगता है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि युद्ध विराम के लिए जो अपनी एग्रीमेंट दे दी कि हाँ भाई हम युद्ध विराम करने को तैयार हैं, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, मोदी जी ने यहाँ से एग्रीमेंट करी, उधर से वो मुनीर साहब हैं उन्होंने एग्रीमेंट करी, क्योंकि शहबाज शरीफ का तो कोई वैसे भी कोई वर्चस्व है नहीं वहाँ पे, अस्तित्व भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इजराइल और ईरान की लड़ाई को देख करके और यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई अभी चल रही है उनको देख करके कि भैया बहुत अकल वाला डिसीजन लिया सर, बहुत अकल वाला निर्णय लिया कि 3 या 4 दिन के बाद बंद कर दिया। क्योंकि आप आज देखिए राकेश प्रजापति जी, कश्मीर में उसी जगह पर पहलगाम में सर अभी होटल का कमरा नहीं मिल रहा है, 1 महीने के लिए बुकड है, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। और सबसे ज्यादा भीड़ हुई है वो जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है ना, उसकी वजह से पर्यटकों की भीड़ जो है वो टूट पड़ी है जम्मू एंड कश्मीर में। वंस अगेन होटल्स आर फुल, एवरीथिंग इज फुल। और तो और छोड़िए, बिकॉज वी आर फ्रॉम मुंबई, हम तो मुंबई से हैं सर, और योगेश चेले साहब भी यहीं से हैं। सर जो यूनिट्स हमारे वहां पे शूट करने को जा रहे थे, जिन्होंने कैंसिल किया, उन सब लोगों ने दोबारा बुकिंग शुरू कर दी है। बॉलीवुड की शूटिंग एक बार फिर जम्मू कश्मीर में दोबारा शुरू हो गई है सर। आप बोलें सर प्रजापति साहब प्लीज। राजीव जी, ये अच्छी बात है, और किसी देश की तरक्की युद्ध से नहीं हो सकती, किसी देश की तरक्की नफरत से नहीं हो सकती, किसी देश की तरक्की धर्म, जाति, मजहब इसके बंटवारे से नहीं हो सकती। ये देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पर सभी लोगों का बराबर सम्मान है। ठीक है, सीज फायर का निर्णय, अब भाई ये तो कह रहे हैं कि हमारा था, लेकिन ट्रंप जी तो बार बार कह रहे हैं, कई बार उनका स्टेटमेंट आ चुका है, कल परसों कल भी आया। हाँ जी, G7 में भी आ गया जी। और आप लोग अभी वो बात चल रही थी कि मोदी जी बता रहे हैं, अब मोदी जी तो कुछ भी बता सकते हैं, क्या बात हुई है उसको वार्तालाप को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? अरे सार्वजनिक करेंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा, सारे देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ मैं, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी देखी है, जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ पकड़ के एग्रेसिव हो रहे थे, वो भी वीडियो सारे देश के लोगों ने देखी है। और पीछे ब्रिटेन का जो सुरक्षा कर्मी था किस तरीके से हंस रहा था, वो भी सारी वीडियो देखी है। क्योंकि जिस तरीके से जो विमान क्रैश का घटना हुई थी और उसमें शायद 56 ब्रिटेन के नागरिकों की जान गई थी, उस पर काफी एग्रेसिव वो लोग दिखे थे कि जवाबदेही भारत की बनती है। आज कितने दिन हो गए उस घटना को हुए, अभी तक उसका यही नहीं पता चल पाया कि घटना हुई किसके कारण थी। पुलवामा में 250 किलोग्राम RDX आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, कहाँ आसमान से आया, जमीन से आया, पाताल से आया, चांद से आया, सितारों से आया, नक्षत्र से आया, ध्रुव से आया, राहु से आया, केतु से आया, पता नहीं कहाँ से आया, यही पता नहीं चला। तंत्र विद्या से आया, मंत्र विद्या से आया, सिद्धियों से आया। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत इसी का देश है, क्योंकि यहाँ तो तंत्रों से, मंत्रों से, सिद्धियों से सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। पहलगाम में वो 4-5-6 जो आतंकवादी थे वो कहाँ से आए, उनको हथियार कहाँ से मिले, किस तरीके से आए, और वो घटना करके कहाँ चले गए, आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, हवा में उड़ गए, देवी देवता उड़ा करके ले गए, यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे इस देश के अंदर क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। उरी घटना कैसे हुई उसकी कोई जवाबदेही नहीं, गुरदासपुर कैसे हुआ उसकी कोई जवाबदेही नहीं। बिपिन रावत जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, उनका आज तक एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ उनका, वो कोई बताइए, किसी भी चीज की कोई सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं है इस सरकार की, यही समझ में नहीं आता। केवल मोदी 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 चिल्लाने से देश का भला नहीं होना है। प्रजापति साहब, विश्व में आपकी छवि कैसी बनी हुई है सारा देश देख रहा है। आप अपने मुंह से कुछ भी कहिए, लेकिन देश पूरा देख रहा है किस तरीके से आपको G7 में बुलाया जाता है और पीछे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। 11 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आगे खड़े हुए हैं और आप पीछे की लाइन में दुबके हुए खड़े हुए हैं।
किस तरीके की स्थिति है, G7 की स्थिति है। बाकी जब वर्ल्ड की स्थिति आएगी तो क्या स्थिति प्रजापति होगी? साहब, योगी आदित्यनाथ जी, विकास भी और विरासत भी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे जिस प्रकार से आज उद्घाटन हो गया, जबरदस्त तरीके से गिन गिन कर उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट के किस रफ्तार में लगे, कंपनीज, मोबाइल, 50% पूरे मार्केट शेयर इंडिया के, तो अलग अलग चीज है। मगर अखिलेश यादव जी अब भी वही भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है? ये जो कहते हैं सिक्योरिटी अब दिख नहीं रहा है? प्रजापति साहब। फिरदीप जी, देश में एक भाजपा के नेता हैं जिन्हें मैं भी पसंद करता हूं, वो है नितिन गडकरी। उनका काम वास्तव में, वो महाराष्ट्र के ही हैं आपके, वो उनका काम वास्तव में सही चल रहा है, ये पूरा देश मानने को तैयार है। और वो कभी किसी नफरती, इसीलिए उनकी तरफ से कभी नफरती ध्यान इस देश के अंदर नहीं देखा गया है। कभी जाति धर्म मजहब कटोगे बटोगे और ये सब तरीके का बयान उनकी तरफ से नहीं देखा गया है। और नितिन गडकरी भी अपना काम बाखूबी इस देश के अंदर कर रहे हैं, मैं ये मानने को स्वीकार कर रहा हूँ आपको। लेकिन बात योगी आदित्यनाथ जी की है तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी लेकर के आई थी। उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लिंक मार्ग से जोड़ने का काम किया है, केवल 30-33 किलोमीटर का टुकड़ा बनाने का काम किया है। गोरखपुर एक्सप्रेस वे पहले से ही बना हुआ था, तो कोई बहुत बड़ा काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। रही बात गंगा एक्सप्रेस वे, जो इन्होंने 2019 में स्टार्ट किया था, 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ भैया? पूछता है जी राजीव जी, एक बहुत गंभीर विषय को मैं बताना चाह रहा हूँ। बोलिए सर। बहुत गंभीर विषय है। कल से ये विषय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छाया हुआ है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27,000 विद्यालयों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। 27,000? 27,000 विद्यालय बंद करने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंकड़ा दे रहा हूं मैं, जिसमें 5,000 का आदेश भी आ गया है और एक विद्यालय बंद भी कर दिया गया है। और वो विद्यालय बंद जो किया गया है उसको पता है, इन्होंने नाम दिया है मर्ज। बेवकूफ किस तरीके से बना रहे हैं ये देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। मर्ज कहा है, मर्ज। मर्ज का मतलब है एक विद्यालय को दूसरे में मर्ज किया जा रहा है। बंद नहीं कह रहे हैं, मर्ज कह रहे हैं। अब एक विद्यालय का सर्कुलर जारी हुआ है, अभी केवल जिसका सर्कुलर जारी हुआ है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो जो सर्कुलर जारी हुआ है वो गोरखपुर का प्राथमिक विद्यालय मिजवा है। उस प्राथमिक विद्यालय को ये कहते हुए बंद किया गया है कि उसमें 49 बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, इसलिए उस विद्यालय को बंद करके उससे 3 किलोमीटर दूर एक प्राथमिक विद्यालय रौतेनिया है, वहां पर मर्ज किया गया है। इसका मतलब प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा के बच्चे, जो 49 बच्चे हैं, वो 3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएंगे। सोचिए वो बच्चे कौन है? गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, संसाधनों से युक्त नहीं है। वो बच्चे इतनी सर्दी में, इतनी बारिश में, इतनी धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलने जाएंगे, 3 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे। जबकि जापान में एक आजकल पेपर की कटिंग बहुत वायरल हो रही है कि जापान में एक बच्ची जाती है केवल, उसके लिए ट्रेन लेने जाती है उस बच्ची को, और एक वही ट्रेन उसको छोड़ने जाती है। केवल सिंगल बच्ची जाती है, उसको ट्रेन लेने जाती है। और ट्रेन ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं आप सोचिए। सरकार ने 1:30 कर रखा है, मतलब 30 शिक्षकों पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति है। तो अगर मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी विद्यालय में 40 भी बच्चे हैं या 50 से कम बच्चे हैं, तो वहां पर एक शिक्षक रख दीजिए, साथ में एक शिक्षा मित्र को रख दीजिए जो 10,000 तनख्वाह पाता है केवल। तो 1.5 टीचर बोलेंगे इसे। 1.5 इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक की आपको पूरी तनख्वाह देनी पड़ रही है और एक की आधी तनख्वाह देनी पड़ रही है। क्या आप एक 1.5 टीचर दे करके उस विद्यालय को नहीं चला सकते हैं? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, अंबेडकर जी, कांसीराम जी, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, ये सब विद्यालयों को खोलने का काम किया दलितों। लेकिन सर ये यूपी सरकार की अभी स्टेटमेंट आई है सर, यूपी सरकार की अभी आधा घंटा पहले स्टेटमेंट आई है
और उन्होंने कहा है नो, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज नॉट डिसाइडेड टू क्लोज डाउन 27,000 स्कूल्स. The state's basic education department has denied reports of such a decision, calling them misleading and baseless. They clarified that no process is underway to close any schools. The department has stated that their focus is on improving infrastructure and the quality of education in existing schools, including through programs like Kaya Kalp and Nipuri. This is what the education department has said. Rakesh Prajapati ji, please go ahead, sir. राजीव जी, क्या आपने इसे गूगल किया है जी. या सर्कुलर है? मुझे क्या बता दें पहले, गूगल किया है या सर्कुलर है? नहीं, गूगल किया है सर. गूगल has quoted a circular. AI circular has been quoted. जी. गूगल तो ये भी बताता है देश का सबसे ज्यादा फेंकू प्रधानमंत्री कौन है. जी. गूगल करिए सर. जी, मुझे मालूम है सर. जी. मालूम है ना? तो क्या गूगल की हुई चीज सही है? जी. नहीं होती. गूगल की हुई चीज सही नहीं होती राजीव जी. मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सर्कुलर बता रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा. सर्कुलर जारी हो चुका है इसका, ठीक है ना? मैं आपको सर्कुलर बता रहा हूँ, मैं गूगल की बात नहीं सर. I am looking for the circular. जी, बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए. जी. मैं आपने जो किया है वो गूगल सर्च किया है, सर्च की हुई बातें सही नहीं है. मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बात है सर्कुलर की. उसका सर्कुलर जारी हुआ है. हाँ, अब बात मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि उसका इतना विरोध हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना विरोध हो रहा है लगातार कल से जो सोशल मीडिया. लेकिन आपकी बात एक ठीक है, लेकिन आपकी बात ठीक है सर. आई एम सॉरी, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ. आपकी बात ठीक है, मर्जर की बात बिल्कुल ठीक है. स्कूल्स के मर्जर जरूर हो रहे हैं. हाँ बोलिए सर, आप बोलिए प्लीज. मर्जर बंदी है. मर्जर का मतलब क्या है? मर्जर का मतलब है, मैंने बताया ना, एक विद्यालय के बच्चों को दूसरे विद्यालय में मर्ज करना. तो वो पुराना वाला विद्यालय तो बंदी हो गया ऑटोमेटिकली, उस पर तो ताला ही लग जाएगा, उसकी बिल्डिंग तो खराब ही हो जाएगी, उसमें कार्यरत शिक्षक तो हटाई दिए जाएंगे, तो वो विद्यालय तो बंदी हो गया. काय का मर्जर? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? नाक घुमा के क्यों पकड़ रहे हो? नाक सीधे सीधे पकड़ो ना. नाक सीधे भी तो हो सकती, नाक को घुमा करके ऐसे पकड़ने से क्या जरूरत है? मर्जर का मतलब है सीधे सीधे बंद होना. राजीव जी, बड़ी समस्याएं है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन केवल धर्म की चाशनी में देश के लोगों को डुबोया जा रहा है, प्रदेश के लोगों को डुबोया जा रहा है. जी. मैं एक चीज और बता रहा हूं. सन 2022 में एक विज्ञापन निकला था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड. पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 3 बोर्ड हुआ करते थे. उत्तर प्रदेश का प्राथमिक बोर्ड अलग हुआ करता था जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करता था. एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अलग होता था जो 10+2 वाले शिक्षकों की भर्ती किया करता था. एक उच्च शिक्षा चयन बोर्ड अलग हुआ करता था जो हायर एजुकेशन की भर्ती किया करता था. 3 बोर्ड थे, तीनों की अलग नियुक्तियां होती थी, तीनों अपने काम किया करते थे. लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 2017 में आती है, इन्होंने तीनों बोर्डों को खत्म करके एक बोर्ड बना दिया. राजीव जी, बड़े चिंता की विषय है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ. So we'll discuss a little bit more on this, sir. So we'll discuss a little bit more on this. I have to go to Yogesh Chele Sahab. Yogesh Chele Sahab has been waiting for a long time. He has not spoken. I'll come back to you on this. We'll have a further discussion on this. क्योंकि ये बात जो आदरणीय राकेश प्रजापति जी बता रहे हैं, ये पिछले साल की है और अभी तक इसको दोबारा रिवाइव किया गया है. ये नवंबर 2024 में ये बात आई थी और अब इसको दोबारा, instead of closing down, we calling it merger right now. That's what is happening. So let me go across to Yogesh Chele Sahab. Yogesh Chele Sahab, सर, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, मतलब ये बात कुछ ज्यादा ही गर्मा गई है सर. मतलब हर कोई कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ बहुत गर्म हो गया है ये मामला जो है. सो आर यू मर्जिंग सर? आप मर्ज कर रहे हैं? इट विल बी अ ग्रेट डे. अगर या यूनिटी हो या अलायंस हो आप दोनों के बीच में. लेकिन हमने तो सुना था कि राज ठाकरे साहब की मीटिंग हुई देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, उसके बाद ये प्लान खत्म हो गया. योगेश चले साहब. सर, फिलहाल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पूरा ध्यान पहली से लेके 5वीं कक्षा तक जो हिंदी अनिवार्य किया जा रहा है उसके विरोध में ही है. अभी हम किसी मर्जर के या किसी अलायंस के बाजू में नहीं है. आज महाराष्ट्र के लिए हिंदी भाषा का विरोध करना, पहली और 5वीं कक्षा में उसे पढ़ाने का विरोध करना, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ा आंदोलन है. तो हम फिलहाल किसी
अलायंस के पीछे नहीं दौड़ रही है। जी, अलायंस के पीछे नहीं दौड़ रही। योगेश चिले साहब, राज ठाकरे साहब ने लेटर लिखा है एवरी स्कूल प्रिंसिपल को कि ये हिंदी इंपोजिशन टोटली इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए। आगे जाके फडणवीस साहब ने भी कहा कि हिंदी इंपोजिशन को मैं स्ट्रांगली ये करता हूं कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप चूज कर सकते हो अमंग ऑल दी अदर लैंग्वेजेस। तो ये शायद राज ठाकरे साहब के संघर्ष के बाद ये नतीजा पहुंचा है। बट सबका कहना है ये मैच फिक्सिंग हो रहा है। नाना पटोले जी कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग बिटवीन राज ठाकरे एंड देवेंद्र फडणवीस जी। बोलिए चिले साहब। नहीं, अभी क्या होता है, जब मराठी का मुद्दा आता है तो कांग्रेस को और उनके अलायंस को ऐसे लगता है कि ये सब मैच फिक्सिंग है। आप कभी उतरे हैं मराठी के बाजू से? अभी जब हिंदी का इंपोजिशन हो रहा है तो क्यों कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बात नहीं कर रहा है, क्यों कांग्रेस का कोई नेता बात नहीं कर रहा है? इसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, और एक बार ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो उत्तर प्रदेश से जिनको हिंदी, बिहार से या जिनको हिंदी पट्टा जो है हमारा, वहां से जिनको हिंदी अच्छी आती है वो शिक्षक यहाँ पे नौकरी करने आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के जो बीएड डीएड किए हुए जिनको आज तक जॉब नहीं मिले, वो पढ़ा नहीं पा रहे, तो वो कहाँ पे जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी आपको क्यों यहाँ पे लानी है? वैसे ही छठी कक्षा से यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। आपको पहली कक्षा से अगर हिंदी लानी है तो आपके खुद के महाराष्ट्र सरकार के जो एजुकेशनल कंसल्टेंट है, आप उनकी बात को रिफ्यूज करें। हमारे एक एजुकेशनल कंसल्टेंट है लक्ष्मीकांत देशमुख, उन्होंने हिंदी को पहली कक्षा से पढ़ाने के बारे में पूरी तरीके से नकारा है उनको। जिस पंतप्रधान मोदी जी की बात सुन के महाराष्ट्र में यह हिंदी इंपोजिशन चालू हुआ है, उनके राज्य में गुजरात में छठी कक्षा से हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां पे भी पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। कर्नाटक में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। तमिलनाडु ने पूरा रिफ्यूज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाई नहीं जाती। जिस त्रिभाषा सूत्र का ये हर बार जिक्र करते हैं कि हमने नेशनल एजुकेशनल स्कीम 2020 के हिसाब से ये त्रिभाषा सूत्र लाए हैं, ऐसा ये कहते हैं, उस नेशनल एजुकेशनल स्कीम में कहीं पे भी आपको हिंदी इंपोजिशन के बारे में कहा नहीं है। हिंदी अनिवार्य नहीं है, उन्होंने ऑप्शनल रखा है। फिर महाराष्ट्र सरकार को ही हिंदी क्यों यहाँ पे अनिवार्य करनी है? क्यों सर, क्यों? आपको क्या लगता है क्यों? आप बताइए ना, क्यों कर रहे हैं? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इनको जब इलेक्शन नजदीक आती है तो इनको भाषावाद याद आता है, इनको प्रांतवाद याद आता है। हम किसी भाषावाद प्रांतवाद के बाजू में नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये राज्य जो इसकी जो निर्मित हुई है वो मराठी भाषा के लिए हुई है, तो यहाँ पे मराठी भाषा को ही पहला प्राधान्य दिया जाएगा। किसी और भाषा को अगर प्राधान्य देना है वो उस स्टेट में देना चाहिए। यहाँ पे हम किसी भी दूसरी भाषा का प्राधान्य यहाँ पे हम सहेंगे नहीं और ये होने नहीं देंगे। अभी ये सब बीजेपी को मालूम है। चिले साहब, आगे जाके राज ठाकरे साहब कह रहा है कि आईएएस लॉबी इसके पीछे है, आईएएस लॉबी इसके पीछे है हिंदी इंपोजिशन के, बिकॉज वो मराठी में संवाद चाहता नहीं है, मीन्स कम्युनिकेशन नहीं चाहते। कितना सच्चाई है इसमें चिले साहब? देखिए, मुझे जहां तक यूपीएससी के बारे में मुझे मालूम है, उनको वही अंग्रेजी या वही उनको हिंदी चाहिए जो यहाँ इस देश के सर्वसामान्य जनता को समझ में आए। उतना ही अंग्रेजी उनको आना चाहिए, उतना ही हिंदी उनको आना चाहिए। तो जो आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र में भेजे जाते हैं वो दूसरे स्टेट के रहते हैं। यहाँ पे अपेक्षा यह है कि जब वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ की भाषा में यहाँ की जनता से बात करें जो उन्हें जमता नहीं है। तो उनके सहूलत के लिए ये लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे पहली कक्षा से हिंदी पढ़े, ताकि जब उनके सामने वही बच्चे बड़े होके आ जाए तो उनको हिंदी आए और ये हिंदी में बात कर सके। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे किसी भी जबरदस्ती को हम यहाँ पे महाराष्ट्र में लागू होने नहीं देंगे। जी, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक केरल का प्रश्न है या तमिलनाडु का प्रश्न है या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का प्रश्न है, वहां पर हिंदी ऑप्शनल है सर, 8वीं जमात के बाद लगती है। ये भी आपको बता दूं, आफ्टर द 8th स्टैंडर्ड। और केरल में तो वो भी नहीं है, केरल में तो 5 लैंग्वेज फॉर्मूला है। हमने सर
हमने सर यही कहा है, हिंदी वैसे भी छठी कक्षा से पढ़ाया जा रहा है। जी जी हमने हिंदी को विरोध नहीं किया, हमारा विरोध है पहली कक्षा से हिंदी आप मत पढ़ाओ। क्योंकि जी। आप अभी भी देखेंगे, किसी भी एजुकेशनल कंसल्टेंट को आप पूछिए, किसी भी छोटे बच्चे को अगर कोई भी भाषा पढ़ानी है, पहली कक्षा में वो जाएगा तो उसको एक भाषा पढ़ाओ, तीसरी कक्षा में जाएगा तब उसको दूसरी भाषा पढ़ाओ, और उसके बाद छठी कक्षा के बाद उसको तीसरी भाषा पढ़ाओ, तभी वो तीनों भाषा अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। आज आप क्या कर रहे हैं, पहली कक्षा से उसको तीन तीन भाषा पढ़ाने का आपने अभी प्रयोग कर रहे हैं, जो कि छोटे बच्चों के बौद्धिक विकास में अच्छा नहीं है, उनके विकास के एंड लिए। वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम एज फार एज आई नो। योगेश चले साहब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं वापस आता हूं फिर उसके बाद विनायक अंबेडकर साहब के पास। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी सैलरीज में भी अभी काफी प्रॉब्लम चल रही है, काफी जगह पे, इंटीरियर्स में काफी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी मतलब 2 या 3 महीने तक अभी तक मिली नहीं है। एटलीस्ट 3 महीने का गैप है उसमें, जहां तक मैं जानता हूं। दैट्स द लास्ट आई हर्ड। क्या वो गैप अब ठीक हो गया, उनको मिलनी शुरू हो गई है सैलरी? इज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ सर? नहीं सर, अभी भी महाराष्ट्र में जब से लाडली बहन स्कीम आई है तब जी। से हर क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में वहां के कर्मचारियों को पगार मिलना, वक्त पे पगार मिलना बंद हो गए। आप तो हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो कर्मचारी है उनसे एक बार बात कीजिए, 7-7, 8-8 महीने उनको सैलरी नहीं दी गई है। जो Oh, शिक्षक है हमारे, जो अभी पढ़ा रहे हैं, उनको जब तक उस स्कूल को ग्रांट नहीं मिलती तब तक ये बेचारे जो शिक्षक है प्राइमरी के, वो 5 या 6 हजार में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि एक ही आशा है कि अब उनके स्कूल को ग्रांट मिले और तब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। पिछले लगातार 12-12, 15-15 साल से यही आशा में शिक्षक महाराष्ट्र में अभी भी पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, ये जो भी पॉलिसी ला रहे हैं, अभी आप अगर हिंदी यहाँ पे अनिवार्य करेंगे तो जो 1 लाख हिंदी शिक्षक आएंगे उनको भी आप सैलरी नहीं दे पाएंगे। यहाँ के जो स्थानिक शिक्षक है उनको ही आप नहीं संभाल पा रहे, तो ये एक्स्ट्रा आएंगे, उनको कैसे संभालेंगे आप? करेक्ट। सो लेट मी गो अक्रॉस टू विनायक अंबेडकर। विनायक अंबेडकर साहब, 2 चीजें हैं यहाँ पे। नंबर 1, मुझे जहां तक याद आता है, आपको तो ऑफ कोर्स याद ही होगा, आप तो वहीं के सर, पंडित नेहरू हैज बीन प्रेज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग। उनकी बहुत प्रशंसा हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए। फॉर एग्जांपल IITs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, Indian Institute of Management, IIMs, Indian Institute of Science, and ISRO, which at that time of course was not called ISRO, it was called Indian Space, some other name it had under Homi Bhabha. लेकिन एक चीज पे उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुआ करती थी विनायक अंबेडकर साहब, और अभी भी होती है, एंड विच इज जस्टिफाइबल ऑल्सो. आई एम रीजनेबली सर्टन राकेश प्रजापति साहब विल एग्री विद मी व्हेन आई गो बैक टू हिम, which was that Pandit ji neglected primary and middle schools. उन्होंने निग्लेक्ट किया इस एरिया को, ताकि so as a result of which a whole anomaly was created, imbalance was created in the country. Now, aren't we doing the same thing, sir? ये हिंदी की इम्पोजिशन लेकर के और स्कूल्स के जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं, बाकी सब चीजें जो हैं एजुकेशन को लेकर के, डोंट यू थिंक दिस एरिया नीड्स मोर अटेंशन सर? आपको लगता नहीं है? आप बताएं सर. सर, इसमें आप लोग मिक्स एंड मैच कर रहे हैं जी. आप इधर के तथ्य उधर को जोड़ रहे हैं. प्राइमरी जो और मिडिल स्कूल एजुकेशन है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कांग्रेस के जमाने में 67 में बनी थी, उसके बाद में 2020 में बनी हुई है जी. तो उसके तहत इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन करके एक चीज है, जो पहली महत्व की बात है कि एक इंग्लिश एजुकेशन के तरफ जो अपने पूरे समाज का बहकावा हो गया था, तो ये इंग्लिश एजुकेशन के बजाय यदि सब प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अपने पालक लोग उनके बच्चे का करियर अच्छा बने करके उनको इंग्लिश स्कूल में तो डालते हैं, मगर वो इंग्लिश भाषा उस बच्चे के घर में बोली नहीं जाती है. तो जो ये आप पहले एक भाई साहब बात कर रहे थे कि एक विशिष्ट एज में एक भाषा उसको समझनी चाहिए, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा किया है कि अप टू 6 ईयर ऑफ एजुकेशन मदर टंग में, उसके मदर टंग के बारे में, महाराष्ट्र रहेगा तो मराठी रहेगा, यूपी रहेगा तो हिंदी रहेगा, तमिलनाडु रहेगा तो तमिल रहेगा, जो भी उसकी मदर टंग है उसमें उसको एजुकेशन देना चाहिए.
अभी एक भाई साहब बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में सख्ती की जा रही है, कोई भी सख्ती नहीं है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने राज साहब के साथ बात होने के बाद में ये पूरा स्टेटमेंट दिया है कि हमारा ऐसा सख्ती का कोई भी ये नहीं है, हमारा डिसीजन उन्होंने वापस ले लिया जो सख्ती का डिसीजन था। उनका कहना है कि बच्चे के करियर के लिए जो भी एज में हो, आप अच्छी तरह से समझो कि वो बच्चा कभी दूसरी भाषा सीख सकता है, उसमें एक हिंदी भाषा होनी चाहिए जो जाके वो पूरे देश भर में घूम सके। जी अभी आपके डिबेट में आपने हमें दो मराठी लोगों को बुला के हिंदी बुलवा रहे और एक हिंदी भाषी को बुला के हिंदी बोल रहे, तो ये भाई साहब इधर आके हिंदी भी बोल रहे हैं ना, तो उन्होंने हिंदी सीखी करके तो हिंदी बोल रहे हैं वो। तो हिंदी सीखना कोई बुरी बात नहीं, मगर ये गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा रुख नहीं है कि किसी चीज का कंपल्शन हो, मगर ये रुख जरूर है कि बच्चे को अप टू 6th ईयर ऑफ हिज एजुकेशन उसके मदर टंग में एजुकेशन दिया जाए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू किया है। इस साल से पहली से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। उसमें एक क्लॉज है कि बाबा त्रिभाषा सूत्र ऐसा उसको बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा गवर्नमेंट बाबू लोग ने उसका कोई गलत अर्थ निकाला और कंपल्शन करने को गए, मगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कंपल्शन हिंदी के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। सर, पहली बात महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा साहब भुसे को जब माननीय राज साहब ने खत लिखा था, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को अपोज किया था। तब दादा साहब भुसे ने ये जो ऑर्डर थी उसको रद्द कर दिया था। बाद में वापस आपके बाबू लोग आपके कंट्रोल में नहीं है मंत्रियों के, कि वापस उन्होंने वो जीआर नया निकाला, ऑप्शनल वर्ड निकाल के इन जनरल वर्ड डाले और फिर वापस पिछले दरवाजे से हिंदी लाना चाह रहे थे। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे, हमें समझ में नहीं आता ये बातें। तो जिस तरीके से अभी और फडणवीस साहब अभी कह रहे हैं, उनको मालूम नहीं, उनके मंत्रियों को के समझ में आते नहीं, वो शिक्षा मंत्री है दादा साहब भुसे। तो हमें जो दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी की मंत्री, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है, उनके कब्जे में उनके जो मंत्री है वो उनकी सुनते नहीं, और उनके मंत्रियों की, उनके प्रशासकीय अधिकारी सुनते नहीं। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत गलत बात है सर। हर स्टेट में होता है अभी। योगेश चिल्ले साहब, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, हर स्टेट में ऐसा होता है। जो बाबू लोग ना आईएएस जो हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दे आर अ लॉ अनटू देमसेल्व्स। वो अभी सर वो अंग्रेज की औलादे हैं, अभी तक चल रहे हैं। राकेश प्रजापति साहब will endorse what I am saying, and so will Vinayak Ambekar साहब, not publicly, but he knows exactly what I am talking about. Sir, I have seen myself, जब पहली सरकार आई थी ना 95-99 में, बीजेपी शिवसेना की जो पहली सरकार आई थी ना, उस वक्त आई कैन नेम द पर्सन, चीफ सेक्रेटरी साहब भर्ती हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे क्योंकि मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, आई वॉज द एडिटर ऑफ द डेली एट दैट टाइम। सर, दिस इज वर्थ लिसनिंग टू, आई एम सो सॉरी आई एम टेकिंग अप योर टाइम। विनायक अंबेकर साहब, राकेश प्रजापति साहब, सुनने वाली बात है। सर, Bala Saheb Thackeray invariably used to call me for something important or the other, because obviously he was not a part of the government. But there used to be 3-4 ministers who were always there, and he always used to say कि तू चुपचाप सुनने का और मुझे बाद में बताने का क्या हुआ। सर, आपको मालूम है, Mr. Bharti, and I am saying so in front of everybody, and he can sue me if he wants, no problem. There were enough ministers over there. Some of them are in the Congress right now. Some of them are in the BJP right now. और उसमें गोपीनाथ मुंडे साहब हुआ करते थे, मनोहर जोशी थे, नारायण राणे थे, अपने क्या नाम है उनका, लीलाधर धाके, who was the law minister at that time. Sir, Bharti साहब always used to come out with an argument, invariably 8 times out of 10, why something cannot be done. जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे स्टेट के लिए, ये क्यों नहीं हो सकता। मुझे अभी तक याद है, राणे साहब ने खड़े होकर के बोला था कि अगर ये नहीं हो सकता तो लोग जब हमारे पास आते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, फिर हम लोगों की क्या जरूरत है। सर, दिस हैज बीन गोइंग ऑन राइट फ्रॉम डे वन। जो अभी योगेश चिल्ले साहब कह रहे हैं ना, विनायक अंबेकर साहब, डोंट माइंड इट, इट हैज बीन हैपनिंग नॉट जस्ट अंडर योर वॉच, इट हैज बीन हैपनिंग इवन टू द प्राइम मिनिस्टर, फॉरगेट अबाउट एनीबडी एल्स। आई कैन गिव यू डजन्स ऑफ एग्जांपल्स कि प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर दिया हो और
उनके सेक्रेटेरिएट ने उसको इंप्लीमेंट ना किया हो, और उसके बाद आपको मालूम है सर विनायक अंबेडकर साहब कैसे छटनी हुई है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। अब आप बोलें विनायक अंबेडकर साहब, प्लीज गो अहेड। आपको एक मैं वाक्य सुनाना चाहता हूं मोदी जी का, जो अभी अभी उन्होंने दिया था। जी बोलिए ना सर। उनका बोलना ऐसा था कि हमारे इधर पॉलिटिकल लोगों को ना बोलने नहीं आता है और हमारे इधर सरकारी अधिकारी को हाँ बोलने नहीं आता है। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है, इसमें सब चीज आ जाती है। क्वाइट ट्रू। उद्धव ठाकरे जी ने कल सभा में यह कहा कि ब्रांड ठाकरे यूबीटी कैन नॉट बी वाइप्ड आउट अंबेडकर साहब, और फिर त्रिशूल के डायलॉग, नाना पाटेकर के डायलॉग, गाड़ी एम्बुलेंस में डाल के भेज देंगे। तो किस प्रकार आगे जाके संजय राउत आपको याद दिला दे कैसे कैसे लोगों को आप ले रहे हो। बड़गुजर सलीम कुत्ता के साथ था, वो दाऊद के साथ संबंध था, देव फडणवीस साहब ने, तो व्हाट इज हैपनिंग। अभी ये कहते कि आपका सिर्फ दाऊद को लेना बाकी है, मसूद अजहर का लेना बाकी है, मिर्ची को लेना बाकी है, बाकी सबको आपने ले लिया जितने गैंगस्टर्स है। अंबेडकर साहब देखिए, इस विश्व में पूरा एक ही संज्ञान वाला आदमी है, वो संजय राउत जी है। तो उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलते, हमारे पार्टी का रूल है कि उनके कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी कमेंट नहीं करते। सर आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर। उद्धव जी के स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे आप कि देवेंद्र फडणवीस जी कैन नॉट वाइप आउट यूबीटी? देवेंद्र जी फडणवीस को कभी भी यूबीटी वाइप आउट करने का कोई रीजन नहीं है। उनको मालूम है ये एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सर्वनाश, जैसा हमारे संघ में हमारे पूर्व सरसंघ चालक ने बताया था कि संघ का नाश खाली स्वयंसेवक ही कर सकते हैं, वैसा कांग्रेस में महात्मा गांधी ने भी बोला था वैसा। तो ये पॉलिटिकल ट्रूथ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाश ये उनके पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी के दिमाग में यूपीटी को नष्ट करना ऐसा कोई भी बात नहीं है। सर मैंने तो कुछ और ही सुना है, मैंने तो कुछ और ही सुना है सर। देवेंद्र फडणवीस जी की कोई वाया बात उद्धव ठाकरे साहब से भी हो रही है। हो सकता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे एक बार फिर वापस आ जाएं और देवेंद्र फडणवीस जी विल बी द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। एनीवे आई डोंट वांट यू टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट वो उड़ती खबर है सर। एनीवे और वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे की पोजीशन थी वो लें और एकनाथ शिंदे जी उसी पोजीशन में रहें जो अभी हैं। एनीवे आई होप इट हैपेंस। It will be great for Maharashtra, very frankly speaking. It will be great for everybody. But there's one thing I must state over here, and this is for everybody. Sir, और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है। राकेश प्रजापति साहब, सुनने वाली बात है सर, सुनिए ध्यान से। Sir, do you know India just achieved a new record? मुझे इतनी खुशी हो रही है, and this thing was started by नितिन गडकरी. After that, नितिन गडकरी जी को ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन से हटा दिया गया और उनकी जगह पे अलग अलग मंत्रियों को लाए गए। Sir, are you aware? I'm sure Vinayak Ambedkar Sahab must be aware. If he is not, then I will feel really good that I have enlightened him on this, because usually he knows everything, especially with regard to the economy. India achieved a record 145.5 million tons cargo movement on inland waterways in 2024-25. Sir, नदियों को इस्तेमाल करके 145.5 million tons of cargo were shipped from one place to the other by boat. और उसके पहले साल में सर इस बार कितने 145.5 मिलियन टन, और 2013-2014 में कितने थे? ओनली 18 मिलियन टन। सर आप खुद देखिए 10 वर्षों में it has been almost, I don't know how many percent increase. How much is that, sir? I think 1000% increase, if I'm not mistaken. Yes. Sir, don't you think that's an achievement? My God, can you believe? Sir, आप मुझे बताइए, विनायक अंबेडकर साहब, राकेश प्रजापति साहब, आप मुझे बताइए, एक जमाना था, and I'm sorry, Vinayak Ambedkar साहब may not agree with me, Rakesh Prajapati साहब may not agree with me, Yogesh Shelle साहब may not agree with me, and Pradeep साहब may or may not agree with me, I don't know. सर एक जमाना था अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान के जो इनलैंड वाटरवेज थे, दे वर आवर हाईवेज। सर द एंटायर गुड्स मूवमेंट यूज्ड टू बी कैरिड फ्रॉम देयर।
नितिन गडकरी साहब ने ये शुरुआत की थी। सर आई एम सो हैप्पी, अंडर द रेडार, कोई पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं। व्हाट एन अचीवमेंट अंबेडकर साहब, व्हाट एन अचीवमेंट, दिस इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डू यू नो व्हाट इज गोना हैपन नाउ? अगर ये इसी तरह मूवमेंट चालू रही ना सर, जो आप बोल रहे हैं ना कि यू विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अनदर 4 years, we will be the third largest economy in another 2 years. 2 years. It is the cheapest form of travel, cheapest form of transportation, sir, and will also result in cleaning up of the rivers, dredging of the rivers and saving the environment. अब विनायक अंबेडकर साहब आप बोले, उसके बाद मैं प्रजापति साहब के पास जाता हूं। Again, congratulations to all Indians. And by the way, UP has the maximum role to play in this. अब आप बोले सर। यस सर, वाराणसी से लेके हुगली तक जी। जो पहला वाटरवे, जिसको वाटरवे नंबर 1 ऐसा बोला गया है, जल मार्ग क्रमांक 1, उससे गए 10-11 साल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। हुई है सर। जिसमें एक जो जेट्टी है वो वाराणसी में बनी है, बाद में दूसरी जो है वो हुगली में बनी हुई है। और उधर से बड़े तौर पे जो खनिज वस्तु है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो बल्क ट्रांसपोर्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी इसको डेवलप करने का जो प्रयास है वो सब जगह चालू है। उसके बाद में नदी जोड़ प्रकल्प करके बहुत बड़ा ये जो है, इसमें नदी का मतलब रिवर वाटर का अच्छी तरह से यूटिलाइज होना, ये भी एक है। और अभी रिसेंटली आपको बताऊं तो पहलगाम के बाद में जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडिया ने उसको स्टॉप किया है, उसको मानने से कंटिन्यू करने को स्टॉप किया है, तो उसमें भी बहुत बड़े वाटरवेज कश्मीर में उस वाटर का अच्छा यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट ये बहुत जोर शोर से चालू है। सर उसके लिए तो एक अलग से शो करना पड़ेगा सर, उसके लिए तो एक अलग से शो करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर प्लानिंग अ 200 किलोमीटर कैनाल, वी आर प्लानिंग 14 रन ऑफ द रिवर डैम्स, अबाउट 20 अदर रिजर्वॉयर्स। और उसके बाद क्या होने वाला है, जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में पानी की किल्लत गुड बाय, खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज है सर, उससे क्या होने वाला है, सतलुज का जो पानी है ना, सतलुज का जो पानी है, विच बाय द वे वी कैन यूज, एट द मोमेंट वी आर नॉट यूजिंग, बिकॉज सतलुज यमुना बेसिन का जो पानी है वो सीधा पाकिस्तान में जा रहा है, इट इज बीइंग वेस्टेड। एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस ओवर देयर बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सर इन अनदर 2 years मां सरस्वती को दोबारा देखने को मिलेगा सबको। एक चीज याद रख लीजिए, सरस्वती रिवर विल बी रीबॉर्न, एज माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड water expert in the world, Rajinder Singh, who had just won the water prize, the Stockholm prize that is called, which is the Nobel for water. Sir, as he says, sir 2 साल के अंदर अंदर त्रिवेणी में तीसरी वेणी भी होगी। Now that is something Ambedkar Sahab, here in Maharashtra, Fadnavis Sahab is doing a fantastic job. Kali 2,400 kilometers, next generation highways, Ambedkar Sahab, जो पुणे आपके पुणे से पुणे रिंग रोड से लेके शक्तिपीठ कॉरिडोर विदर, इट्स हिस्टोरिकल व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र आल्सो इज कंसर्न। अंबेडकर साहब ये देखिए, समृद्धि महामार्ग जिसके ऊपर बहुत उसके रुकावट डालने का ये आघाड़ी सरकार ने प्रयत्न किया था, तो वो समृद्धि महामार्ग देवेंद्र जी ने आते ही, अपने सत्ता पे आते ही उसको पूरा किया है और अभी 100% वो ऑपरेटिव हो गया है। और समृद्धि महामार्ग का जो बेनिफिट है वो 8 जिलों को और 700 गांवों को मिलता है। तो ये सब चीजें हो रही है। वाडवन बंदर जब आएगा तो वाडवन विल बी द 10th लार्जेस्ट बंदर पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो वाडवन बंदर का भी काम शुरू हुआ है। सर इवन विदाउट दैट 67,000 करोड़ रुपीस दिया है, उसमें सेंटर का भी बड़ा पार्ट है। जी सर, वाडवान बंदर का जहां तक प्रश्न है उसके ऊपर एक और शो करेंगे, and we will talk about the environmental impact of Vadhavan and what we can do for Konkan, etc., etc. I don't think the MNS will agree with you jahan tak Vadhavan bandar ka sawal hai. Let's be very clear, and I am with the MNS on this one. But anyway, I don't matter. Let's be very clear. But what I am really and truly happy about is the way in which river transport is being used right now. Oh my God, this is going to be beautiful. We are going to go back to what India used to be and ought to have been. I wish somebody, जैसे योगेश चिले साहब, और मेरी बात ना जाने इस पे कितनी बार हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जागेंगे एक दिन कि मुंबई शहर जो है,
मुंबई शहर जो है वो आइलैंड है सर। You want to speak something? आई नो जजीरा है, आई नो, आई एम जस्ट गोइंग टू हिम, लेट मी फिनिश। सर वाटर ट्रांसपोर्ट यहां पर से इस्तेमाल कीजिए। जहां तक आपका सवाल है वो टोल वोल ये क्या कोस्टल रोड वोड छोड़िए सर, रोड का कोई काम नहीं है बॉम्बे में। बॉम्बे में कश्तियों का काम है। बॉम्बे जो है, मुंबई शहर जो है वो मछुआरों का शहर है। प्रदीप भाई और मैं न जाने कितनी बार इस पे शो कर चुके हैं, और वही हाल राकेश प्रजापति जी भी आपको बताएंगे। वही हाल मछुआरों का है, केवटों का है। उत्तर प्रदेश में हालत खराब है उनकी, प्रजापति समाज की तो हालत खराब ही है। लेट्स बी वेरी क्लियर, उनकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। सर मैं आपको एक प्रोफेसी बताता हूं, पता नहीं आप लोग मानते कि नहीं मानते, मैं तो मानता हूं। यह कहा जा रहा है कि जिस दिन मुंबई शहर से, मुंबा देवी के शहर से मछुआरे चले गए, उस दिन मुंबा देवी का शहर खत्म हो जाएगा। अब आप बोले चिले साहब प्लीज, उसके बाद मुझे प्रजापति साहब के पास जाना है प्लीज। सर हम बहुत खुश है कि महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग जैसे बड़े बड़े हाईवेज आ रहे हैं और महाराष्ट्र विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हम और ज्यादा खुश होंगे अगर हमारा मुंबई गोवा महामार्ग जो इतने सालों से रखड़ा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। जी, जी। और हम किसी रुकावट के बगैर उस पे एटलीस्ट 500 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने पिछले डिबेट में भी सर इस पे बात की थी कि मुंबई से हम कोंकण अगर समुंदर के जैसे पहले जाते थे, मेरे पिताजी के वक्त वो वाटर रूट शुरू था, वैसे ही अगर वो शुरू हो जाता है तो उस दिन हम डबल खुशी मनाएंगे सर। और हमें विश्वास है कि देवेंद्र जी ये जरूर करेंगे। सर इसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वाटर रूट जो है ना, ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं सर, एज राकेश प्रजापति जी विल एग्री विद मी सर, जहां पर इकोनॉमी होती है, जहां पर खर्चा ज्यादा नहीं होता ना, वहां पे सरकार का इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों राकेश प्रजापति जी? राकेश प्रजापति जी, जहां पर पैसे ज्यादा खर्च नहीं होने वहां पर सरकार का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। सर अब आप ये बताएं कि जहां तक प्राइमरी स्कूल्स का सवाल है, अभी जब हम लोगों की बात चल रही थी तो मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। आई एम सो सॉरी, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये 27,000 स्कूलों के बारे में बताया। एंड वी आर गोइंग टू कैरी ए फुल कैंपेन ऑन दिस। इसके ऊपर पूरी कैंपेन करेंगे सर हम लोग, स्कूल बंद नहीं होने देंगे सर। नाउ यू टेल मी सर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? सरकार भरे, ठीक है, सरकार ने निर्णय ले लिया, सो व्हाट? सब लोगों को सड़क पे आना चाहिए। और जैसे अभी अभी जो एग्जांपल दिया ना इन्होंने सर, चिले साहब और विनायक अंबेकर साहब, जापान में एक बस का रूट था, उसको बंद करने वाले थे। जब मालूम पड़ा कि एक लड़की है वहां पे, सिर्फ एक लड़की, जो कि उस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल को जाती है, दे केप्ट इट गोइंग टिल शी पास्ड आउट ऑफ स्कूल। सर ये होता है कमिटमेंट। हिंदुस्तान, मैं कहता हूं, आज भी विश्वगुरु है। विश्वगुरु हमें बनने की जरूरत नहीं है, पिछले 5000 साल से हम लोग विश्वगुरु हैं। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन रीड विलियम डैलरिम्पल्स बुक द गोल्डन रोड। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक ऑन व्हाट इंडिया हैज गिवन टू द वर्ल्ड। प्लीज रीड इट। सर राकेश प्रजापति जी, आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, आपको लगता नहीं है कि हम लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो विद्या होनी चाहिए? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धरा धर्म तथा सुखम। अब आप बोलें सर प्लीज। राजीव जी, शिक्षा ही है वो चीज जो व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालने का काम करती है। दुरुस्त बात है सर। शिक्षा ही वो चीज है जो व्यक्ति को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, जो बोलेगा वो दहाड़ेगा। राजीव जी, बात अधूरी रह गई थी। मैं एक बहुत बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। बहुत मालूम है एक्चुअली ये बात है जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सुन नहीं पाती, उनको सुनने का वो नहीं है, क्योंकि उन्हें मदरसे से फुर्सत नहीं है, हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है, मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं है, इस पर तो डिबेट ही नहीं करते हैं। मैं जब भी बैठता हूँ इसी पर बात करने की प्रयास करता हूँ। जब भाजपा, यहाँ भाजपा के भी जो प्रवक्ता बैठे हुए उन्हें सोचने की विषय है, और ये लोग पता नहीं रिपोर्ट देते हैं नहीं देते हैं किस तरीके से। सन 2017 में जो भाजपा की सरकार आई, मैं बता रहा था कि पहले 3 बोर्ड हुआ करते थे जी। कक्षा 1 से 8 तक की भर्ती के लिए अलग बोर्ड हुआ करता था, उसे प्राइमरी बोर्ड कहते थे, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कहते थे।
9 से 12 तक की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था और हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा आयोग हुआ करता था। जब भाजपा की सरकार 2017 में आई और इन्होंने 2018 के लास्ट तक आते आते एक बोर्ड बनाया और कहा ये 3 बोर्डों को खत्म करके एक सामूहिक बोर्ड बनाएंगे। राजीव जी और प्रदीप जी, बड़ा शर्म की बात यह है, बड़ा दुख की बात यह है, 2018 से लेकर के 7 साल हो गए, 7 साल, 2025 आ गई और आधी बीत भी चुकी, 6 महीने बीत भी चुकी है, 6 महीने रह गए। ये 7 साल में एक बोर्ड नहीं बना पाए और जब बोर्ड ही नहीं बना है तो भर्तियां कैसे होंगी? एक भर्ती नहीं। 2022 में माध्यमिक शिक्षा के एक विज्ञापन निकला था 2022 में। 3 साल हो गए, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी मतलब ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यस दैट्स राइट सर। टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी की बार-बार परीक्षा को ये रद्द करते जा रहे हैं। 3 बार परीक्षा रद्द हो चुकी, आप गूगल कर लीजिएगा इस चीज को, आ जाएगा। 3 बार, अभी होनी थी, जून में होनी थी, उसको भी रद्द कर दिया। प्रवक्ता की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। बेसिक में 1,92,000 शिक्षकों के पद खाली है। ऐसा करके उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट डाला जाता है, सुबह को ट्वीट डाला जाता है और शाम को ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। Sir, can I stop you? Can I stop you, sir? I want a clarification. I want a clarification for my own knowledge. आपने अब ये भी कहा कि 3 एजुकेशनल बोर्ड हुआ करते थे यूपी में, 3, तो वो तीनों के तीनों डिसॉल्व कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर कोई नया बोर्ड नहीं बना है। अगर ऐसी बात है तो इम्तिहान कैसे लिए जा रहे हैं? हु इज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन सर? प्रजापति साहब। नहीं, राजीव जी यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, प्लीज बोलिए। तीनों बोर्ड को हटा करके इन्होंने एक सामूहिक बोर्ड बनाया है। एक सामूहिक बोर्ड बनाया, अच्छा, बना दिया है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। उसमें जो मेंबर जिनका कार्यकाल 3 साल होता है, कुछ मेंबरों को 3 साल खत्म होने जा रहे हैं और एक भर्ती नहीं कर पाए, एक भी भर्ती नहीं कर पाएंगे। बात ये है मैन, इन्हें 8 साल लग गए बनाने में, एक बोर्ड बनाने में। 8 साल बोर्ड बनाया, बनाने के बाद उसमें जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति निकालने में 2 साल लगे, 2 साल लगे और उनको नियुक्त करने में 6 महीने लग गए। अब उन नियुक्त किए हुए जो मेंबर्स हैं और जो अध्यक्ष है, उन सबका कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक एक वैकेंसी नहीं ला पा रहे हैं। दूसरा जो मैं कह रहा था कि प्राथमिक विद्यालय की एक भर्ती के लिए कि 1,92,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के पद खाली है। सुबह को ट्वीट किया जाता है और किसी से नहीं, मुख्यमंत्री जी के उससे डाला जाता है और शाम को उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। हायर एजुकेशन में कोई भी एक परीक्षा हुई है अब जाकर के, थोड़े दिन पहले अब हुई है जाकर के, मतलब इनके कार्यकाल में एक परीक्षा हो पाई है। इतनी बुरी स्थिति शिक्षा की कर दी गई है। आज प्राइम मिनिस्टर ने, प्रजापति साहब, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करके कहा कि एजुकेशन सोर्स 390% के वृद्धि है। हमारे क्लासरूम्स हैव बिकम ग्लोबल क्लासरूम्स, हमारे क्लासरूम्स है ग्लोबल क्लासरूम्स हो गए, उसमें 390% इंक्रीज हो गया है। QS 2026 रैंकिंग्स में 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लासरूम्स ऑफ ग्लोबल क्लास डिक्लेयर किया गया है। ग्लोबल क्लास हमारा इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो रहा है। प्रजापति साहब, वी आर टेकिंग जायंट स्टेप। बोलिए। प्रदीप जी, हंसी मुझे इस बात पर आ रही है कि मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हर दिन एक महाविद्यालय बन रहा है, हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर सप्ताह हर महीने एक IIM बन रहा है, हर सप्ताह ये बन रहा है। अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर हर दिन एक महाविद्यालय बनना है तो साल में 365 बन जाने चाहिए थे। 11 साल में 36,000 महाविद्यालय बन जाने चाहिए थे। कहाँ कैलकुलेशन है सर? कैलकुलेशन दिया है प्रधानमंत्री, मुझे आंकड़े 2 मिनट में बोलता, फिर बोल दीजिए आप। बोले कॉलेजेस 51,000 52,000 कॉलेजेस बनाए। मैं समझ गया,
प्रदीप जी, मैं समझ 13,000, गया। 1400 महाविश्वविद्यालय बना है, 23 IITs, 21 IIMs और AIIMs 23, यानी जबरदस्त एक लीप है 2014 से। प्रदीप जी आंकड़ों में मत उलझाइए, इनके आंकड़े फर्जी होते हैं, इनके आंकड़ों को मत जाइए। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ, धरातल पर देखिए, धरातल पर उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की स्थिति बुरी है, जर्जर है। प्राथमिक विद्यालय, देखिए मैं बेशक कहना चाहता हूँ, दिल्ली में स्कूलों का मॉडल फेमस था, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व जी पर काम चल रहा है। अच्छे विद्यालय थे, मैं खुद जाकर के मैंने कई विद्यालयों को देखा है, और कई मेरे रिश्तेदार, कई मेरे जान पहचान के लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम किया था। मैं खुद, मेरे खुद रिश्तेदार हैं, मैं खुद जाकर के देखा। उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों की स्थिति बदतर है। किसी भी तरीके का कोई फंड किसी तरीके का नहीं दिया जाता है। अगर सबसे ज्यादा, मेरा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा सीधा आरोप है राजीव जी, मेरा सीधा आरोप है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया है तो वो शिक्षा व्यवस्था पर किया है, और सबसे ज्यादा चौपट की है तो शिक्षा व्यवस्था पर। तो प्रजापति साहब, यहाँ पे एक सवाल उठता है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, और उसके पहले हमारे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उस वक्त भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। आदरणीय सामान्य विनायक अंबेडकर साहब को भी याद होगा, हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी, केदारनाथ सानी साहब, और हमारे क्या नाम है उनका, मदन लाल खुराना जी, दिल्ली के, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूं सर। वो ये कहा करते थे, प्रजापति साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिकॉज यू आर इन दी एजुकेशन फील्ड, यू आर अ लेक्चरर एंड अ प्रोफेसर योरसेल्फ सर, जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया है, इसका तो हाथ नहीं है कहीं सरकार का हाथ रोकने में? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, प्लीज बी फ्रैंक, ट्रुथफुली बताइए, क्योंकि दिल्ली में तो है और मुंबई में भी तो, और मुंबई में जैसे योगेश चिले जी, आई एम श्योर विल एंडोर्स इट, मुंबई में सर जो अंग्रेजी स्कूल का नाम लगा करके स्लम के अंदर स्कूल चला रहे हैं और ना जाने कितने हजारों रुपए की फीस ले रहे हैं स्लम के बच्चों से, अभी भी चल रहा है सर। एंड वी हैव, प्रदीप जी एंड आई, यू विल बी ग्लैड टू नो, वी हैव स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट दैट। हम लोगों ने इसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करी है कि बीएमसी के जो स्कूल्स हैं और सरकारी स्कूल जो हैं, उनका जो बजट है, मैं आपको बता दूं सर, यहां पे चिले साहब और अंबेडकर साहब, सर द बजट इज इनफ, budget allocation is enough, it is not being utilized or it is being distributed elsewhere. Let's be very clear. सर सरकार ने बजट दिया है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। Let me tell you very frankly, in Maharashtra एजुकेशन को बहुत बढ़िया बजट दिया गया है, उसके इंप्लीमेंटेशन में जो रोक टोक आती हैं, एंड देयर इज अ स्कैम इन्वॉल्व्ड, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अब आप बताएं राकेश प्रजापति जी, क्या उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल माफिया काम कर रहा है? आप बताएं प्लीज, बोलिए। बिल्कुल डेफिनेट रूप से काम कर रहा है। मैं तो कई बार इस बारे में बोल चुका हूं, लिख चुका हूं। इस भारत का सबसे बड़ा स्कैम बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा। जी बोलिए सर। एक कैलकुलेटर निकाल लीजिए सर। सर आप ही बता दीजिए सर मैं रुकूं क्या? Thank you, sir. Thank you, Vinayak Ambekar ji. Thank you very much, sir. Thank you. Great pleasure and congratulations once again. The economy is looking up, and those areas of the economy which we were not even aware of, they are coming forward. And by the way, congratulations to everybody. The latest figures show इंडिया और यूएस के ट्रेड में इंडिया का सरप्लस है तकरीबन $41 बिलियन का। नो वंडर मिस्टर ट्रंप इज गोइंग क्रेजी। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अलग से शो कीजिए और हम उसमें आई वुड लव इट बात करेंगे। सर फॉर दैट व्हाई डोंट यू कम टू बॉम्बे? I will to Mumbai. I will be glad to call Prajapati Saab also and Yogesh Chile Saab also. Yogesh Chile Saab wants a discussion in Marathi. And we'll have a discussion in Marathi and in Hindi and in English, or we'll have a round table discussion over coffee and sandwiches or samosas. Yes sir. और samosas. आपके ऊपर है sir. But thank you very much, Vinayak Ambekar साहब. Great pleasure having you on the show. नमस्कार sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you. जी राकेश प्रजापति जी, please go ahead. आप एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम आप बता रहे थे। योगेश चिले साहब, क्या आपको भी जाना है? यार बहुत
बहुत बिजी हो गए लोग। सर आप तो रुकिए सर आप तो रुकिए ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ प्रजापति साहब बोलिए बोलिए, प्लीज 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 बोलिए। देखिए राजीव जी, जी इस देश की आबादी लगभग 146 करोड़ होने जा रही है। सर 156 करोड़ है सर, क्या बोल रहे हैं 142 करोड़, 156 करोड़ है सर हम लोग। जी हाँ 146 नहीं, 156 करोड़ जी 156 करोड़, 146 बोल रहा था मैं, 156 करोड़ हो गई है जी। और इस समय जो 18 साल से कम उम्र की संख्या है वो इसकी लगभग 25% है, 1/4 यस यस। 1/4 अगर इसका करते हैं तो 40 करोड़ छात्र जीवन में है। ठीक है, 40 करोड़ ये 44 करोड़ 44 करोड़। हाँ लगभग, मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ 40 to 45 करोड़, यस क्वाइट राइट, बोलिए। मैं 40 करोड़ जनसंख्या जो है इस समय छात्र जीवन में है जी। ये मैं बात कर रहा हूँ 18 वर्ष से कम के, और 18 वर्ष से कम का बच्चा जो होता है वो 1 to 12 की एजुकेशन लेता है, 1 से 12 की एजुकेशन लेता है। इस 40% पॉपुलेशन में 50% मान ले रहे हैं गवर्नमेंट में पढ़ता है और 50% मान ले रहे हैं कॉन्वेंट में पढ़ता है। ठीक है, कॉन्वेंट कह लीजिए, सीबीएसई कह लीजिए, आईसीएसई के कोई भी बोर्ड कह लीजिए, यानी कि 20 करोड़ लोग हो गए, 20 करोड़। और अब मैं तो स्टेप बता रहा हूँ वो समझिए यार, लोगों का नुकसान कितना पैसा बर्बाद हो रहा है पर ईयर, वो निकाल के बता रहा हूँ। 20 करोड़ लोग बच्चे जो हैं वो कक्षा 1 से 12 तक के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट का मतलब सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से हो सकता है, वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। ऑन एवरेज आज एनसी क्लास की जो किताब आ रही है वो 4 से 5 हजार रुपए की आ रही है। कक्षा 3 या 4 की जो क्लास आ रही है, किताबें आ रही है, वो 5 से 6 हजार रुपए की आ रही है। कक्षा 12 की क्लास है 10 से 15 हजार रुपए की बीच आ रही है। अगर ऑन एवरेज हम निकालें तो 6,000 रुपए ले लें, 6,000 रुपए, 6,000 गुणा 20, 6,000 गुणा 20 करोड़ पर कितना होता है जी? 6,000 गुना 20 करोड़ यानी हो गया 062 1,200 करोड़, 1,200 करोड़ हो गया। 1,200 करोड़ नहीं हुआ सर जी, कितना हुआ? जोड़िए सर, जोड़िए। आप बताइए क्या क्या बोल रहे थे आप? कितना गुना क्या बोल रहे थे आप? दोबारा बोलिए। 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ आबादी हो गई जी। 6,000 रुपए की किताबें आ रही हैं पर ईयर की जी, तो 6,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ जी, 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ रुपए पर ईयर का बर्बाद हो रहा है किताबों में, क्योंकि अगली साल को वो किताबें रद्दी में फेंकती जाती हैं, 6 रुपए किलो की रद्दी में। अगर ऐसा कोई नियम बनाया जाए, इस पैसे को रोका जाए, तो ये पैसा भारत के डेवलपमेंट में काम हो सकता है। राजीव जी, बड़ा स्कैम है। No, but I'm really sorry to stop you here. मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। सर हम दिल्ली में पढ़ा करते थे, प्रदीप भाई तो यहाँ मुंबई में पढ़े हैं, योगेश चिल्ले साहब भी यहीं महाराष्ट्र में पढ़े हैं। सर पहले जब हम पढ़ा करते थे तो बाय द टाइम वी यूज्ड टू रीच, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो हमारे से 4 क्लास ज्यादा हुआ करते थे। योगेश चिल्ले साहब सुनने वाली बात है, वो ही वाज 4 years सीनियर टू मी, वो 4 क्लासेस आगे थे। So by the time I reached over there, I could use his books. उनकी किताबें मैं इस्तेमाल कर सकता था सर, कोई नई किताबें यूज करने की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेजी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, इन सब चीजों की किताबें तो सेम ही रहेंगी ना सर। हाँ हो सकता है कि फिजिक्स में, साइंस में कुछ अलग अलग हो। यहां पर क्या हर साल किताबें चेंज होती हैं? पूछ रहा हूं सर आपसे। अरे जी राजीव जी, ये आपको शायद जानकारी नहीं है। नहीं मेरे पास नहीं है जानकारी, इसलिए पूछ रहा हूं। यही तो जानकारी, यही तो है। हर साल ये सीबीएसई स्कूल वाले लोग, आईसीएसई स्कूल वाले लोग, स्कूल वाले लोग हर साल किताबों को बदल देते हैं। हर साल नई किताबें लगाते हैं, नई किताबें लगाते हैं।
सर इस पर रिसर्च कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही रिसर्च कर लीजिएगा, बहुत बुरी स्थिति है इसकी, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। हर साल किताबें बदली जाती है, हर साल पब्लिकेशन बदल देते हैं, हर साल ये सर्च कीजिएगा, ये सर एक सेकंड सर, आई वांट अ कमेंट फ्रॉम योगेश चिल्ले साहब, बिकॉज द सेम थिंग इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र। योगेश चिल्ले साहब, ये क्या है? सर, हर साल किताबें बदलते हैं? सर पहली बात तो ये 1,20,000 करोड़ का नहीं, मैंने अभी वापस कैलकुलेट किया, 2 लाख करोड़ का स्कैम है। 2 लाख करोड़ का, शाबाश। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ किताबों का सवाल नहीं है, ये जो असाइनमेंट देते हैं, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, स्कूल बना के लाओ, इसमें भी 4-5 हजार वो पेरेंट्स को डालने पड़ते। ये चीजें कोई बच्चे बना नहीं सकते, उनकी बुद्धि का उतना विकास ही नहीं हुआ है, फिर भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बताएंगे जाओ बंगला बना के लाओ, ये बना के लाओ, फलाना बना के लाओ, ये सब पेरेंट्स करते हैं और उनको भी वक्त नहीं है। तो स्कूल के नजदीक का कोई दुकानदार रहेगा, वो यही असाइनमेंट यानी ये जो बंगले बिंगले बनाने हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लास्टिक के पुट्ठे के, ये सब बना के रखते हैं और 4,000-5,000 में ये बेचते। ये अलग ही स्कैम है सर। ये जो प्राइमरी स्कूल का जो स्कैम है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के डोनेशन को भूल जाएंगे, इतना बड़ा ये स्कैम है सर। एब्सोल्युटली ट्रू जी। प्रजापति साहब आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर प्लीज। तो जैसे अभी योगेश चिल्ले साहब ने बताया, ऑन एन एवरेज अगर लिया जाए, मैं दोबारा अपने दर्शकों को बता दूं, दीज आर एवरेज फिगर्स और ये अनुमान है, अप्रोक्सीमेट है। एक्चुअल स्कैम इससे भी 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इट इज वर्थ एटलीस्ट 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ मिनिमम। और 2 लाख करोड़ के ऊपर अगर आप वो जोड़ लें प्रदीप जी, जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं सर, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को या बच्ची को यह कहा जाता है कि आप जो हैं पार्लियामेंट का मॉडल बना करके लाएं। अब वो कहां से बनाएगा यार, आप मुझे बताइए। अब मैं आज नहीं बना सकता, वो बच्चा क्या बनाएगा? सो यू विल हैव टू पे समबडी टू मेक इट, और उसके ऊपर उसको नंबर मिलते हैं। अब आप बताइए राकेश प्रजापति साहब, आई थिंक एजुकेशन माफिया इज मोर डेंजरस देन द अंडरवर्ल्ड, मुझको तो ऐसा लगता है। प्रजापति साहब बोलिए प्लीज। बिल्कुल राजीव जी, उम्मीद है कि आप इस पर कुछ ना कुछ वर्क करेंगे और वी विल सर, वी विल, थैंक यू सो मच। दिस इज ये इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं, लिख चुका हूं, कई बार मैं इस पर सर्वे कर चुका हूं, पूरा सर्वे है मेरा, सर्वे है, पूरा सर्वे है, मैंने आपको बता दूं। और सर आपने इसके ऊपर जो कुछ लिखा है, कैन यू शेयर इट विद अस सर? मैं वो योगेश चिल्ले साहब के साथ भी शेयर कर दूंगा, विनायक अंबेडकर साहब के साथ भी शेयर करूंगा। सर प्लीज शेयर। देखिए सीधे आई सेंड यू माय ईमेल, जरा ईमेल पे भेज दीजिए सर। राजीव जी, स्कूलों में ड्रेस के नाम पर, स्कूलों में जूतों के नाम पर, मोजों के नाम पर, क्या क्या नाम पर, बेल्ट, बिल्ले, टाई, बेल्ट, इन सब के नाम पर क्या क्या। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ राजीव जी, वास्तव में अगर सरकार की मंशा है कि सरकारी स्कूल सही हो, तो एक क्राइटेरिया बना दिया जाए कि भाई अगर एक सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल के 4 किलोमीटर, इंटर कॉलेज है कोई, इंटर कॉलेज सरकारी, उस सरकारी इंटर कॉलेज के 4 किलोमीटर की रेंज में किसी भी प्राइवेट कॉलेज को मान्यता नहीं मिलेगी। देखें सरकारी स्कूल सही नहीं हो जाएंगे तो भी मजबूरी में व्यक्ति वहीं पर पढ़ाएगा सर, या फिर उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव कर लीजिए, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ। कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसके रेंज में 10 किलोमीटर में रेंज बना दीजिए कि इस 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसी भी डिग्री कॉलेज को, नए प्राइवेट डिग्री कॉलेज को मान्यता नहीं मिलेगी। देखें वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सही ना हो जाए। तो अगर सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा, क्योंकि भारतीय जनता, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है। लोग पढ़ें, लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद शिक्षा सवालों का सवाल पैदा करती है। अनपढ़ रहेगा व्यक्ति, सवाल नहीं करेगा, अगर व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा तो सवाल करेगा, अपने सर इसके ऊपर तो बहुत डिबेट कर चुके हैं सर, के बारे में जानेगा। सर इसके ऊपर तो मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, वेरी फ्रैंकली। राकेश प्रजापति साहब, शायद आप राज ठाकरे साहब को नहीं जानते। राज ठाकरे साहब के बारे में आप, पता नहीं आपको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। आप तो यूपी के रहने वाले हैं,
आपको जो कुछ भी मालूम पड़ा होगा अच्छा तो मालूम नहीं पड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि राज ठाकरे साहब अकेले ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं मानता हूं, ये सबके सामने मैं ये डिस्क्लेमर बता रहा हूं कि राज ठाकरे इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन राज ठाकरे साहब अकेले नेता हैं जो वास्तविकता में स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहले नेता हैं जिन्होंने कहा कि भाई देखिए, मुंबई शहर में आप पीछे चले जाइए, 40 साल, 45 साल, 50 साल पीछे चले जाइए। योगेश चले साहब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुंबई शहर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, लेकिन महाराष्ट्र में ना जाने कितनी डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई, जहां पर जो कैपिटेशन फीस है ना सर, राकेश प्रजापति जी, आई डोंट थिंक यूल बी सरप्राइज्ड, कहीं से 1 करोड़, कहीं 80 लाख, कहीं 50 लाख, ना जाने कितनी। और तो और छोड़िए, द फनी पार्ट इज राकेश प्रजापति जी, विच इज इवन बिगर, फॉरगेट द स्कैंडल सर, हाउ कैन एन आर्ट स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, प्रदीप जी और मैं उसी के बारे में कल परसों बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, सारी उम्र उसने बीए किया है, पिताजी ने जाकर के, मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूशन का, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, लोकेटेड समवेयर डाउन साउथ, कैपिटेशन फी दे दी योगेश चिले साहब, आज वो आदमी डॉक्टर है सर, डॉक्टर बन गया है। सारी उम्र जिसने हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और ना जाने ये सब पढ़ा, आज वो साइंस स्टूडेंट नहीं था, आज वो डॉक्टर बन गया है। सर, व्हाट इज गोइंग ऑन? प्रजापति साहब, आपको लगता नहीं है कि इसके ऊपर एक नेशन वाइड मूवमेंट शुरू होनी चाहिए? वी नीड एजुकेशन एंड द बजट एलोकेशन ऑफ एजुकेशन, budget allocation for education is always brought down every year. Sir, this is even more important than defense. आज की तारीख में हम लोगों का जो ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल हुआ है, हमारे डीआरडीओ और इसरो की वजह से हुआ है। Let's not forget. प्रजापति जी, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जी राजीव जी, देखिए मैंने पहले ही कहा ना, जो आप बात कर रहे थे वो बात पूरी नहीं हो पाई कि आप कह रहे थे कि आपके बड़े भाई थे, 4 साल सीनियर थे, आपने उन्हीं किताबों से पढ़ लिया। जी, मैं आपको बता, मैं जब इंटर फिजिक्स में था, इंटर साइंस में था, तो मैंने अपने सीनियर से, जो काफी मेरे ख्याल से मेरे तो 10 साल पुरानी किताब मुझे फिजिक्स की मिल गई थी, उस 10 साल पुरानी किताब से ही मैंने पढ़ लिया था। लेकिन आज स्कूलों में ऐसी टेंडेंसी बना दी गई है, इतना बच्चों पर हार्ड प्रेशर बना दिया जाता है कि लैब मैनुअल के नाम पर जो किताब 20 या 30 या 40 रुपए की छपती होगी, उसको 400 रुपए में बेचा जा रहा है। जो सिलेबस 1000 रुपए में आ सकता है, वो 10 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसको एक कंपेनिंग आपको भी चलानी चाहिए। सर चला रहे हैं, एक सिलेबस कम से कम 5 साल तक नहीं बदलना चाहिए, एक किताब 5 साल तक नहीं बदलनी चाहिए। कोई स्कूल अगर ऐसा करता है तो स्कूल की मान्यता खत्म होनी चाहिए, उस स्कूल का निरस्तकरण होना चाहिए, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, उसकी मान्यता खत्म होनी चाहिए। एक सिलेबस 5 साल तक किताबें चलनी चाहिए। योगेश चले साहब, आप बताएं क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बात में होगा। योगेश चले साहब, आप बोलिए सर, राकेश जी एकदम सही बात कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से पेरेंट्स को फीस भरनी पड़ रही है, और फीस के अलावा जो उनको खर्चे ज्यादा से ज्यादा किए जा रहे हैं, पिकनिक के नाम पे, बुक्स के नाम पे, या फिर ये असाइनमेंट के नाम पे, इससे पेरेंट्स एक हद तक ही अपने जो चाइल्ड है उसको पढ़ा पाएंगे, उसके बाद उनकी ताकत ही नहीं है पढ़ाने की। हम जिस तरीके से ये सब स्कैंडल अभी शुरू है, कुछ सालों में ऐसे होगा सर कि पेरेंट्स सोचेंगे कि मेरा लड़का 10वीं तक ही पढ़े तो ठीक है, उसके बाद मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊंगा, और सरकार भी उसको पढ़ा नहीं पाएगी। तो इससे बचने के लिए हम सबको पार्टी बाजू में रख के एक भारतीय के नाते सोचना पड़ेगा और इसके खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा सर। एब्सोल्युटली करेक्ट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। इट हैज बीन अ मोस्ट एनलाइटनिंग डिस्कशन एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो इज प्रदीप जी। प्रदीप जी और मैं आज जितने खुश हैं मैं बयान नहीं कर सकता। राकेश प्रजापति जी, आई मस्ट थैंक यू, आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर जो जानकारी दी उसके लिए आई मस्ट रियली एंड ट्रूली थैंक यू सर, आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड योगेश चिले जी, जो महाराष्ट्र संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपने समझा दिया, इट्स अ वेरी
every school family is suffering. और ये हालत है 10वीं के बाद तो लोग भूल ही जाएंगे frankly, अब सरकार इंटरव्यू नहीं किया तो। और सरकारी स्कूल्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा सर, देयर इज नो अदर वे, लेट्स बी वेरी क्लियर। और इसके लिए सबको सड़क पे आना पड़ेगा सर, सिर्फ ट्विटर खेल के या फेसबुक खेल के कुछ नहीं होने वाला, सड़क पे आना पड़ेगा सर। और ये बोलना पड़ेगा कि भैया अगर तुमने स्कूल्स को इंप्रूव नहीं किया तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी इसमें लीड लेगी उत्तर प्रदेश में, और एमएनएस तो लीड ले ही रही है यहां पे, महाराष्ट्र में तो आप हैं ही और हम आपके साथ हैं सर। विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए आप कुछ भी करें, वी आर विद यू टोटली। और भाई में चलते चलते वन गुड न्यूज, अगर आपको मालूम नहीं है, योगेश चले साहब और राकेश प्रजापति जी, यशस्वी जायसवाल साहब ने 101 रन बनाए आज। न्यू टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स विदाउट, बिना विराट कोहली के, बिना रोहित शर्मा के और बिना रविचंद्रन अश्विन के। वी आर नाउ एट 253 for 3. Shubman Gill is playing on 82, Rishabh Pant is playing on 12, and Yashasvi Jaiswal got out for 101, KL Rahul for 42. हेडिंगली में सर, इंग्लैंड में, और रिकॉर्ड बनाया सर जी। और ये कहा जा रहा था कि इस टीम का तो सत्यानाश है, खत्म हो जाएगी पहले दिन पे, आप देख लेना 100 रन के नीचे आउट हो जाएंगे, ये कहा जा रहा था अगेंस्ट अ फुल स्ट्रेंथ इंग्लिश टीम। आई थिंक वी मस्ट कंग्रेचुलेट द बॉयज। क्या लड़के हैं सर, क्या जबरदस्त। और अपना यशस्वी जायसवाल तो सर यहीं का है, आजाद मैदान के पास, अगर आपको याद हो, वो जो ग्वाले हैं सर, उनके पास रहा करता था ये लड़का। ये वो है, यूपी से लड़का है, यहां पर आया। और जो सर आपको पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं राकेश प्रजापति जी, जो वो डेयरी थी वहां पे, तो ग्वालों ने बोला तू यहां पे रह जा, हम तेरे को दूध पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं तेरे को। सर जबरदस्त, आई मस्ट से दिस, एंड ही सीम्स टू लाइक द इंग्लिश बॉलिंग वेरी फ्रैंकली। इसने अभी तक 2 डबल सेंचुरी अंग्रेजों के खिलाफ बनाई है जब इंग्लैंड टीम यहां पर आई थी, एंड इट इज वेरी फर्स्ट टेस्ट अब्रॉड। पहली बार ये टूर पे गया है, बाहर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गया था, सॉरी, ये इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार जो गया है, ही इज ऑलरेडी स्कोर्ड अ सेंचुरी, एंड आई थिंक, आई होप आई डोंट जिंक्स इट, Shubman Gill is also playing very well. Fantastic team. Rishabh Pant is also playing very well. KL Rahul has also played very well. Sai Sudarshan, well, he got out for a duck, but bad luck. I hope he does well in the second innings. But what a performance! This is really and truly a great day. Thank you, gentlemen. Thank you very much, both of you. It's been a real pleasure. और राकेश प्रजापति जी और योगेश चिले साहब, इस चैनल के ऊपर these are the subjects that we would like to take up. आज आपने एजुकेशन की बात करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़े दिनों के बाद आप मेडिकल फैसिलिटीज की भी बात करेंगे और मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात करेंगे। सर यही कहने वाला था मैं, इस पे एक शो होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक नहीं सर, इस पे कैंपेन जरूरी है, और मैं एजुकेशन के ऊपर तो हम लोग कैंपेन करेंगे सर। दिस विल बी अ नेशन नाउ कैंपेन, स्पेशली विद रिगार्ड टू महाराष्ट्र एंड विद रिगार्ड टू उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे राकेश प्रजापति जी विल एग्री विद मी, उत्तर प्रदेश में अगर आज एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो गया तो भारत को पीछे आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधी बात है सर, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके। बट राकेश प्रजापति जी, आपके पास सिक्योरिटी है ना? राकेश प्रजापति जी, आपको सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है कि नहीं? नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है सर। सर ऐसा आदमी हूँ सर, एजुकेशन माफिया है सर, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मैं बता रहा हूं आपको, कौन चलाते हैं, कितने डिग्री कॉलेज चलाते हैं, आपको मालूम है? अगर आप बोले तो मैं नाम लेना शुरू कर दूं। सर आपको पता है कौन लोग हैं वो? राजीव जी, मैं प्रकृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और प्रकृति में जैसे लिखाई है मौत वैसे ही होगी जी। बट वी लव यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। योगेश चिले साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव। थैंक यू। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। Oh, this was really lovely. I loved this show today, sir. You were very passionate about it. Sir, I've never had a more fulfilling show than this. Yes. Let's be very, very clear. Sir, what I suspected is really true. That means, ये schools का जो माफिया है ना सर, प्रदीप जी, इसके ऊपर मैं और आपने जाने कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं। सर, जब तक इसको आप तोड़ेंगे नहीं, भारत का भविष्य ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहेगा सर। सर, आम आदमी पार्टी को
मेडिकल माफिया और स्कूल माफिया ने हरवा दिया सर दिल्ली में। क्या बात कर रहे हैं सर? सर एक्साइज के ऊपर लिकर स्कैम वैम वो चलो ठीक है चलता है, वो कोई बात नहीं है। क्या है, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा जेल चले जाएंगे, मनीष सिसोदिया जी, सज्जन जैन जी दोबारा जेल चले जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि दिल्ली में जो उन्होंने स्कूल्स की स्थिति और जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और लोगों की सेहत को लेकर के जो मेडिकल केयर प्रोवाइड करने का प्रयत्न किया, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था सर। आई विश people over here in Mumbai, in Nashik, in Nagpur, in Pune, everywhere would replicate that same model. किसी से सीखने में कोई हर्ज नहीं है सर, कर सकते हैं। If that happens, it will be fantastic. But I don't know how it will happen because this mafia, by the way, is among the biggest contributors to the kitty of political parties. And in Maharashtra, the politicians themselves. They themselves the mafia. Politicians themselves are running educational institutions. Or running all the educational institutions. So I don't know how it's going to happen. But our kids need better education. I'm shocked at the fees which are being mentioned right now. Absolutely appalling. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप लोगों ने हमारा शो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रदीप जी, The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और यहाँ पर हम लोग सच बोलते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेते हैं जो वास्तविकता में लोगों के हित के हों। वो सारे मुद्दे यहाँ पर लिए जाते हैं। That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.